Good evening. Namaste, everybody. Jai Guru to all. Welcome to today's class on Patanjali's Yoga Sutras. Let us integrate our energy. Let us sit with a straight spine. Let us take a long, deep breath. Let us raise the energy up to the spiritual eye. Get centered, gaze upwards, focus. Now let's invite the presence of the divine in our life. Let us pray together. Heavenly Father, Divine Mother, Friend, Beloved God, Bhagwan Krishna, Mahavatar Babaji, Jesus Christ, Lahiri Mahashai, Swami Shri Yukteswar Ji, Beloved Gurudev Paramhansa Yogananda Ji, Friend and Guide Swami Kriyananda Ji, Saints and Sages of all religions, great sages Ved Vyas, Maharshi Patanjali, Adi Shankaracharya, humbly we bow and touch thy feet. Divine Mother, I offer myself at thy holy feet with an aspiring heart, a zealous mind, and a flaming soul. I am thy child. Receive the offer of my devotion at thy feet. Hold me, embrace me, and bring me home. Om Shanti, Shanti, Shanti. Let us sing the hymn to Brahma and call upon the Gurus.
Let's feel the tangible presence of Lord Krishna in our own heart. Let us feel that He is smiling through us, He is listening through us, He is speaking through us. It is His prana that is flowing in our body. It is His blood that is flowing in the veins. It is His electricity that is enlivening this body. It is His love that we exist. Take a moment to thank Him for being there and for all the drama of your life. And thank Him for making life interesting. Okay, so let's hear a few thoughts by Swamiji on high-mindedness. People often speak of cynicism as the mark of realism. In fact, in a universe without any visible center, one might justifiably develop his understanding of it from any conceivable starting point. One's understanding, however, will only reflect who and what he himself is. A view from the depths lacks the perspective that can be achieved from the heights. From the mountaintop, all things are seen in their true proportion. Strive always to be a channel for high thoughts and inspirations. Never cooperate with anything petty or mean. Remember, the universe is, for each human being, both a mirror and an affirmation. One who entertains high thoughts will be himself ennobled. Let us do the following affirmation repeatedly 3 to 4 times. I will see goodness in everything. I will view the world around me, not from the depths of matter attachment, but from the heights of divine aspiration. I will see goodness in everything. I will view the world around me, not from the depths of matter attachment, but from the heights of divine aspiration. I will see goodness in everything. I will view the world around me, not from the depths of matter attachment, but from the heights of divine aspiration. Let us keep this affirmation at least for today in our mind, that we will see goodness in everything. Whatever is that is confronted by us today, then we shall just see the good in it. And if we can extend this for till tomorrow, day after, that's all the better for us. Let us do the following prayer mentally. Lord, the universe was made in thine image of perfection. Help me to bring out that image in others by blessing them in thy love. Om, peace. Amen. So friends, welcome again to today's class. And we begin with a story. And the story of today is from the time of Lord Buddha. So as we always say, once upon a time or long, long ago, when Lord Buddha was alive in his body, it was a time when a lot of Vedic rituals were in preponderance and the caste system was heavily, demarcated. So only the Brahmins, supposedly, ideally, the Brahmin is a knower of Brahman, but because the caste system went on to become hierarchical means ran in families. So basically this original thing was lost and people were becoming Brahmins because they were born in that family. And it is and they would know Sanskrit, and therefore they would know some scriptures to some extent, or at least they would memorize them by heart. Whether they understood them or not is a different story altogether. So they would know those scriptures and they would do the ritual ceremonies, and those ritual ceremonies was the demand of the day. And everybody thought that by doing ritual ceremonies alone, they can attain all they need in life. So whether it was
prosperity they were looking for, or whether it was, during the birth of a child, during a marriage procession or a marriage ceremony, or the Upanayam. Means any ceremony, any new thing in life had to have a ritual, and those ritual could only be done by a Brahmin, and he had very limited knowledge. And so it was a complete superstitious way of living. And one of these superstitions and one of these traditions that people thought that they could not dispense with was the rituals done for the deceased, for the Pitris, for our ancestors. So there was this rich man whose father left his body. And so this rich man wanted to do all that he could to make his father comfortable in heaven. So it was thought that if you do certain rituals, you can go to heaven. And Rig Veda to some extent does give rituals which can make your life and afterlife comfortable. But then that's not the whole story. So the people were limited in their thinking that this is the only way, that now it is up to us to, do certain rituals so that our fathers and our forefathers could enjoy heavenly abodes, could go to higher realms, and we need to do something. So this rich man went to many Brahmins and asked each of them to do some ritual. And he said, but you have to guarantee me that my father is going to go to heaven. So I will do this ritual with you, but if you guarantee me, and I will give you all the riches, but you have to guarantee me that he is going to go to heaven. So none of the Brahmin could actually give him that guarantee, that final guarantee that yes, this is the case that is going to happen. So he went from Pandit to Pandit and Brahmin to Brahmin and priest to priest, but he did not find anybody who could give him that 100% guarantee. So this was the time of Mahatma Buddha. Mahatma Buddha was in body, and he was supposedly near that town where this rich man lived. So he went to Lord Buddha and he said, and he fell on the feet of Lord Buddha and he said, now you are the only one who can redeem me and who can redeem my father. And I totally have come to your refuge, and I will not go away unless you do something about, my father going to heaven. You have to do this. So Lord Buddha was, he was in a fix as to how to handle the situation. But then, of course, he's the wise one. So he asked this rich man, to go and collect ghee and some stones, and in a pot, in a mud pot, so clay pot basically. So basically एक मटके में उसको कुछ पत्थर लाने थे और घी लाना था. तो वो रिच है पर्सन, तो वो छोटा मोटा मटका तो लाएगा नहीं, वो बहुत बड़ा अपने टाउन में सबसे बड़ा मिट्टी का मटका ढूंढ के लाया. उसको लगा मैं जितना ज्यादा दान करूंगा, जितना ज्यादा करूंगा ये रिचुअल, उतना ज्यादा मेरे पापा जो हैं पिताजी स्वर्ग में पहुंचेंगे. तो बहुत ही बड़ा मटका वो ढूंढ के लाया. उसको उसने आधा पत्थरों से भरा और आधा घी से भरा, जैसे कि महात्मा बुद्ध ने कहा था उसको. तो अब वो नदी के किनारे महात्मा बुद्ध उसकी वेट कर रहे थे और ये सारा सामान लेके वो वहां पहुंच गया. अब महात्मा बुद्ध ने कहा कि अब आप जो है इसको, जो ऊपर माउथ है इसका पॉट का, उसको आप कपड़े से कवर कर दीजिए ताकि ये कुछ भी गिरे नहीं बाहर. तो एक टाइटली बेसिकली उसको बंद कर दिया गया उसके मुंह को. और फिर जो है उन्होंने कहा कि अब इसको आप लेकर जाओ नदी में, मटके को लेकर जाइए. ऑफ कोर्स बहुत डूब ना जाए, इतना दूर नहीं जाने को कहा, कुछ हद तक आगे जाने को कहा, और कहा कि ये जो मटका है ये आप नदी में छोड़ दीजिए और फिर वहीं खड़े रहिए, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है. सो बेसिकली वो बंदा आगे गया, दैट पर्सन वेंट इनसाइड दैट वाटर बॉडी and he kept the pot. So because उसमें stones भी थे तो वो मटका थोड़ा सा पानी के नीचे जाने लगा. तो महात्मा बुद्ध ने उसको कहा कि अब एक डंडा पकड़ाया उसको और बोला कि ये डंडे से ना ये पॉट को आपने फोड़ना है, ठीक है, और यदि जो पत्थर हैं आपके फ्लोट करने लग गए ऊपर, तो इसका मतलब आपके पिताजी जो हैं स्वर्ग में गए हैं, और अगर ये नहीं फ्लोट करे तो इसका मतलब वो नहीं गए हैं. तो उसने अपने हाथ में डंडा लिया, अपने इष्ट को याद किया, अपने जो भी मंत्र उसने अभी तक नॉलेज में थे उसने सभी को इन्वोक किया और उसने उस मटके को फोड़ दिया. और जब वो मटका फूटा तो क्या हुआ, सारे पत्थर नीचे चले गए और जो घी था वो ऊपर फ्लोट करने लग गया. तो फिर उसको लगा, ओहो सारे पत्थर तो नीचे चले गए, इसका मतलब मेरे पिताजी तो स्वर्ग में गए ही नहीं. और इस विचार से वो मुड़ा और बुद्ध की तरफ चलने लगा पानी में से, और बुद्ध उसको स्माइलिंगली देख रहे थे. और जब तक वो बुद्ध तक वापस पहुंचा उसको ये समझ आने लगा कुछ कुछ कि महात्मा बुद्ध ने ऐसा क्यों करा है जो करा है.
तो वो आके उन्होंने कहा, उस रिच मैन ने बुद्ध को कहा कि आप तो कह रहे थे कि वो स्टोन्स ऊपर आएंगे, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, स्टोन्स तो पानी के नीचे ही जाते हैं अगर उनको डालो पानी में, और घी तो पानी के ऊपर फ्लोट ही करता है, ये तो प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम कैसे पलटेगा। तो फिर महात्मा बुद्ध ने शांत स्वभाव में उसको समझाया कि जिस तरह से आप कुछ भी मंत्र पढ़ने से प्रकृति का नियम नहीं बदल सकते, इसी तरह जो कर्माशय है किसी का, जो रिपोजिटरी ऑफ कर्मा है, उसको आप मंत्र पढ़ के या मेरे कुछ इंटरवीन करने से वो नहीं बदल सकता है। यदि आपके पिताजी ने अपने जीवन में ऐसे कार्य करे हैं जो कि अपलिफ्टिंग हैं, तो वो घी की तरह ऊपर जाएंगे, और यदि उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कार्य करे हैं जो कि डाउनवर्ड एनर्जी लेकर जाते हैं, तो वो अपने आप पत्थर की तरह नीचे जाएंगे, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। सो दैट वाज a very very deep learning for that person, and always the masters teach so that all the generations after them also understand. So we must also understand that a mere superficial ritual is not going to change what we have done previously. So we have to actually do the counter good acts or the counter different acts to counteract that karma, and whatever has been done, of that the result is going to come. And this is also related to what we are studying in Patanjali about the repository of karma. और कर्म फल को हम, वैसे तो कृष्ण ने कहा है कि इसको समझना बहुत ही कठिन है, ये क्योंकि इसकी इट्स लाइक अ फैथमलेस ओशन, ये सिंपल मैथ्स जैसा नहीं है कर्म। लेकिन अगर हम उसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम बहुत सिंपली उसको समझ सकते हैं। सिर्फ इतना सोचिए कि जो आज फल आप खाते हैं, चाहे वो अगर आप आम खा रहे हैं या आप लीची खा रहे हैं, अंगूर खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, क्या ये आज बोया गया था? नहीं बोया गया था, ये कुछ महीने या कुछ साल पहले इसका सीड बोया गया था, इसीलिए फल आज आप खा पा रहे हैं। सिमिलरली सारी वेजिटेबल्स, और सिमिलरली जो आप अपनी जो जॉब से रिलेटेड अब जो आप काम करते हैं, उसके एक्चुअली इन्वेस्टमेंट आपने पढ़ाई की बहुत साल पहले की थी, वो बीज आपने तब बोया था, इसीलिए आज जो आप कमा पा रहे हैं वो उसका फल है। तो हमारी लाइफ में एक्चुअली जो भी इस समय हो रहा है, इट्स लाइक ईटिंग अ फ्रूट, और इन सबका जो बीज है वो पहले बोया जा चुका है। चाहे वो कुछ महीने, अब कुछ कर्म होते हैं जिनका इंस्टेंट रिजल्ट होता है, जैसे कि आग में अगर आप हाथ डालोगे तो तुरंत जलेगा, ये आग ये नहीं कहेगी कि मैं तो कुछ टाइम लेके आपको जलाऊंगी, नहीं, आग तुरंत जला देगी। लेकिन यदि आप आम का बीज लेके कहोगे कि मुझे तो आम खाना है, तो वो बीज कहेगा कि रुको, पहले मुझे समय लगेगा सैपलिंग बनने में और बुश बनने में, फिर ट्री बनने में, 5 साल के बाद आपको आम मिलेगा। तो इसीलिए जो कुछ कर्म है वो टाइम लगाते हैं और कुछ कर्म तुरंत एक्ट करते हैं। लेकिन आज हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो एक तरह का कर्म फल है जिसको हम आज भोग रहे हैं। तो अब कर्म फल में का क्या मतलब है? अब इसमें दो बातें आ जाती हैं कि या एक तो हो गई एक्सेप्टेंस और एक हो गई हमारा कर्तव्य। तो जो हमारे साथ हो रहा है उसको हमें इवन माइंडेडली एक्सेप्ट करना है, ठीक है। दूसरा हो गया इस समय, अब प्रेजेंट मोमेंट में हमें अपना कर्तव्य निभाना है। तो यदि हम हर प्रेजेंट मोमेंट में अपना राइटियस धार्मिक कर्तव्य निभाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो पास्ट कर्मा का बैलेंस है वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। तो यदि अगर आज आपको कुछ आपकी लाइफ में कुछ अच्छा भी हो रहा है, जैसे मोस्ट ऑफ अस, इनफैक्ट हमारी सबकी लाइफ में द फैक्ट दैट वी हैव loving people around us, that we have a roof over our head, that we have some educational qualification, that our children are doing okay, is means this ये सब फल है, ये अच्छा है। इस चीजों को तो हम इग्नोर कर देते हैं कि हमारी लाइफ में ये चीजें अच्छी हो रही हैं। हम सिर्फ जो छोटा मोटा बुरा होता है, उसने ये कह दिया, थोड़ी तबीयत खराब हो गई, ये हो गया, हम उसी के ऊपर फोकस करते रहते हैं। जो इतनी लिस्ट अच्छी चीजों का जो फल हम खा रहे हैं वो तो हम भूल ही जाते हैं। सो उसको हमें एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती, हमें हैप्पीनेस एक्सेप्ट करने में, पीस एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। एक्सेप्टेंस कहाँ चाहिए? जहाँ जिस चीज को हम बुरा डिफाइन करते हैं या पेनफुल डिफाइन करते हैं, उस चीज को हमें इवन माइंडेडली एक्सेप्ट करना है और साथ ही साथ अपना कर्तव्य निभाते जाना है। तो यही कर्म भोग से जब हम कर्म योग में आने लगेंगे तो धीरे धीरे पुराना कर्म भी सारा कट जाएगा, और फिर हमारे जो प्रेजेंट कर्म है इवेंचुअली वो हमें इस साइकिल से हमें फ्री करेंगे, क्योंकि पहले बुरे कर्म को अच्छे कर्म से काटना होता है और फिर ये ज्ञान से ये राइज करना होता है कि ये कर्म हम कर ही नहीं रहे, ये एक्चुअली गॉड इज द डूअर।
सो दिस इज हाउ इट्स बेसिकली प्लेस्ड। और पतंजलि की जो हमने सूत्र पिछले टाइम में पढ़े हैं, उसमें उसमें हमने यही पढ़ा था कि जो रेपोजिटरी ऑफ कर्मा है वही डिटरमिन करती है कि हम किस स्पीशीज में पैदा हो रहे हैं, क्या शरीर हमें मिल रहा है, क्या उस शरीर की आयु होने वाली है, क्या प्लेजर और पेन होने वाले हैं, ये सब हमारा रेपोजिटरी ऑफ कर्मा डिसाइड करता है। और उसके नेक्स्ट सूत्र में पतंजलि ने ये भी कहा है कि जो आने वाला बुरा कर्म का इफेक्ट है उसको अवॉइड कर सकते हो आप। और उसको अवॉइड करने के लिए उसके बाद उन्होंने क्या साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया है कि सारा कुछ हमें ये हम प्रॉब्लम हमारी ये आती है जब कि हम सीन और सीयर को मिक्स कर देते हैं, यानी कि हम द आत्मन, द विटनेस, द सीयर काइंड ऑफ मिक्सेस आवरसेल्फ विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड एंड देन वी रिएक्ट टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड। तो जो पुरुषा है वो प्रकृति से मिलके इस कंजंक्शन में आ जाता है और ये गेम जो है वो चल पड़ती है इस दुनिया की, और हम सोचने लगते हैं कि यही गेम फाइनल है। तो इसमें पतंजलि ने क्या बोला है कि अगर आपने फ्यूचर पेन अवॉइड करनी है तो आपको डिस्क्रिमिनेशन से पुरुषा और प्रकृति यानी कि सीयर और सीन को सेपरेट करना है, और आपको ये जानना है कि आप आत्मन हो, आप सीयर हो, आप ना ये शरीर हो, ना ये प्राण हो, ना ये थॉट प्रोसेस हो, ना ये इमोशंस हो। इससे अपने आप को पीछे हटाना है। और उसके बाद नेक्स्ट 2 वर्सेस जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे उनमें उन्होंने गुनाज के बारे में बताया, और उन्होंने ये बताया कि जो सारे गुनाज हैं ये हमारे एक्सपीरियंस के लिए भी हैं और फिर ये हमारी लिबरेशन के लिए भी हैं। क्योंकि जब हम इस वर्ल्ड में इन गुणों के बीच में रह के काम करते हैं, कार्य करते हैं, पेन एंड प्लेजर का गेम खेलते हैं, और इवेंचुअली एक योगी जब समझ जाता है कि जो प्लेजर दिखता है वो भी एक्चुअली पेन ही है। सो बेसिकली everything in this world is limited and painful because our real nature is unlimited and infinite, तो हमें कुछ भी उससे less limited जो है वो painful लगेगा। इसी को हमने, इसलिए स्वामी विवेकानंद ने एक बात इंटरेस्टिंग इसमें बोली हुई है कि जो एक्सपीरियंसेस आपको करने हैं वो करके खत्म करो एंड रियलाइज यू आर नॉट एनी ऑफ दिस। ओके, सो जो छोटी मोटी डिजायर्स हैं या तो ट्रांसेंड करो या तो पूरा करो, go through it, understand it, see other people's lives, read the scriptures and know that all of this is for nothing actually, and then rise above all of that. And then in the next verse which we did the last time, इसमें उन्होंने कहा था कि जो सारा जो गेम है पुरुषा और प्रकृति, और इसको हम बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो फर्स्ट उन्होंने कहा था डिफाइंड है, यानी कि जो ग्रॉस एलिमेंट से ये दुनिया दिखती है वो फर्स्ट है। सेकंड उन्होंने कहा जो है अनडिफाइंड है, यानी कि जो एसेंस है हर चीज का, जिसको हमने लास्ट टाइम डिस्क्राइब किया था जैसे कि तन मात्रा जिसको बोलते हैं, जिसको हम एसेंस बोलते हैं, यानी कि फूल का एसेंस है फ्रैग्रेंस, और ऐसे ही जो बिहाइंड द सेंस ऑर्गन्स एंड सेंसेशंस जो उसका एसेंस है चीज का वो अनडिफाइंड है। फिर उसके बाद 2 और कैटेगरीज उन्होंने कहा इस दुनिया में है। वन इज द इंडिकेटेड ओनली एंड दैट इज दैट इंटेलिजेंस, बुद्धि या फिर कॉस्मिक इंटेलिजेंस। सो ये हिडन है, ये भी मतलब इंडिकेटेड है बिकॉज एनालाइज कर पाते हो, इसीलिए आपको पता है कि ये एग्जिस्ट करती है। और फिर फाइनली वो चीज है जो कि साइनलेस है, जिसका एक्चुअली अव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड है, और वो है पुरुषा। सो ये सारे लेवल्स हैं हम सबकी एग्जिस्टेंस के। सो नाउ वी कम टू द सूत्र नंबर 20. In this, Patanjali says, Drashta दृष्टि मात्र शुद्धो अपि प्रत्याय अनुपाश्य। इसका क्या मतलब है? दृष्टा मतलब सीयर, योर ऑब्जर्वर। दृषि मात्र मीन्स the seeing force, the act of seeing. शुद्धो is pure, api is even though, pratyay is conviction or belief, anu is kind of following along, it's patterning after something. Pashya means what is perceived. So इसमें क्या explanation है इसकी? What the great ones are saying, they are saying although pure, since the consciousness of Purusha sees over the mind's process of cognition, doing so it appears as identical with the mind even though the observer is not so. Simply speaking, क्योंकि जो पुरुषा है, जो सीयर है, द विटनेस है, वो माइंड की प्रोसेसेस को लुक ओवर करता है। इनफैक्ट द कॉन्शियसनेस इज द इल्यूमिनेटर ऑफ द माइंड। तो वो माइंड की जो वृत्तिज होती हैं उससे कलर हो जाता है। और ये पहला जो हमने समाधि पाद किया था उसमें भी पतंजलि ने कहा था
कि यदि हम चित्त वृत्ति निरोध नहीं करते हैं, यदि हम माइंड की वृत्ति इसको नहीं कैंसल आउट करते या नहीं उसको न्यूट्रलाइज करते, तो जो कॉन्शियसनेस है उन वृत्तिज का कलर ले लेती है. फॉर एग्जाम्पल, अब आई एम द आत्मन. ओके, नाउ इफ देर इज एंगर इन मी, सो वो एंगर किसका फंक्शन है? माइंड का फंक्शन है. सो द माइंड इज एक्सप्रेसिंग एंगर and I am the witness of that anger, but I am saying I am getting angry, I am angry. So the fact कि ये दोनों चीजों को मैंने overlap कर लिया, मैंने ये नहीं सोचा कि I am the witness consciousness, the Atman, and I am aware that my mind is angry. These are separate things, but because of our conditioning since birth, हम ये सीधा कहते हैं I am angry. I, the real self, cannot get angry. I is only an observer. I is only the pure witness. So यहाँ पे ही वो कलर होने लगता है माइंड से. यही माया का खेल है. माया जो है वो माइंड पे अफेक्ट करती है, और क्योंकि जो द सेल्फ है वो माइंड के फ्लो में मिक्स हो जाता है, इसीलिए हमें ऐसा लगने लगता है कि ये आई है जो कि अफेक्ट हो रहा है. The ordinary person confuses the soul with the overlapping intelligence, personality, energy, and body, and therefore sees the other as colored by its outward limitations. The yogi, however, understands that the soul is pure and free, and the overlapping processes of the mind, like and personality and body, are different and are bound. Therefore, the yogi can see the underlying Purusha beyond the mind-body complex. स्वामी क्रियानंदा ने जी भी बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है. He says that which sees, which experiences through the senses, though apparently colored by the mind, is in reality pure consciousness. The pure consciousness of the Atman is not touched by what the ego sees or experiences through the senses. We should try to remain unaffected, therefore, by anything. Never be afraid. Ever be unmoved by gain or loss, untouched by any pleasure or pain. Is it possible to be totally unmoved by gain or loss, untouched by pleasure or pain, and never to be afraid? So this is a question for all of you. क्या ये possible है हमारे लिए या नहीं है, या ये ऐसे ही एक statement कह दी गई है? Anybody? Is it possible? So let's just talk about the potentiality of the situation. क्या fearlessness एक possibility है? क्या ये possibility है कि कोई gain और loss से किसी को कोई भी फर्क ना पड़े और वो pleasure और pain में भी संभाव बनाए रखे? क्या ऐसा हो सकता है? Yes, it can happen, and then you become a Buddha. Okay, so it is a possibility. Is it a possibility for each one of us or no? Yeah, only for the Buddha. Possibility yes, for everyone. One by one. Okay, Pandit, say something. It is possible. It takes time. Over Okay. a gradual period of time, maybe I found in last 14-15 years, I Uh, have been moving in that direction. And That's maybe to my satisfaction, I feel about 80-85% I have achieved in that direction. Excellent. So इसका मतलब 14-15 साल पहले आपने इसका बीज बोया था कि आप fearless होंगे किसी समय पर, जिसका फल कुछ हद तक आज आप महसूस कर सकते हैं. Right. Excellent. So it is possible for each one of us. Yes, Anjali, you wanted to add on to that? I was just repeating my statement. Then one becomes a Buddha. That means everyone has the potential of becoming a Buddha. Okay. So are we trying to become a Buddha or no? Or are we saying कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा pleasure pain कर लेते हैं, थोड़ा सा gain, क्योंकि जब gain में मजा आता है तब कुछ नहीं, कोई नहीं इस दुनिया को छोड़ना चाहता. जब pleasure मिल रहा होता है तो उस समय उसको detach नहीं हो पाते हैं, तो तब तो मूवी का मजा ले रहे होते हैं. क्या हम तब ऐसा सोच पाते हैं कि जब लॉस आएगा तभी भी मैं इतना खुश रहूंगा? क्या हम कह पाते हैं? आई मीन थिंक ऑफ अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन कि आपकी लॉटरी लगी तो आप कहोगे वाह वाह, आई हैव डिजर्व्ड इट, यू नो, ये तो मुझे मिलना ही था, यू नो, आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. और थोड़े दिन बाद
वो पैसा कोई चोरी कर ले या आपको चीटिंग करके वो ले जाए, तो क्या आप दोनों सिचुएशन में सेम हो सकते हो या होना चाहोगे, या आप लॉटरी में खुश और चोरी में दुखी होना चाहोगे? आपकी चॉइस क्या रहेगी, क्या करना चाहोगे आप? यस आशीष। जय गुरु मैम। Banker can answer that question very well. Yes, banker. Of course, one will be sad जब कोई चोरी हो जाएगी. So, but then it's a very nice potential the point which you have shared कि 15 साल पहले मैं भी एक बीज बोया था, which resulted in becoming fearless. So that point to ponder is कि वो बीज क्या था? I mean, is it just a thought? Or is it a constant action that for 15 years we have to continue tilling that soil? Or is it just a thought कि मेरे को fearless होना है और 15 साल बाद मैं fearless हो जाऊंगा? Okay, so इसमें firstly of course it's a thought. वो seed तो thought ही है. सबसे पहले ये जानना कि fearlessness is a possibility and then I am going to be fearless, determining. फिर अब उसको till कैसे करोगे? So everything in spirituality has to be tested in the cold light of the day. ठीक है? So अब अगर आप एक आर्मी पर्सन से पूछो तो उसको फियरलेसनेस तो डेवलप करनी पड़ती है, ओवरनाइट तो नहीं डेवलप होती. जब एक बच्चा एनडीए में जाता है तो वो फियरलेस नहीं होता है, लेकिन वो ट्रेनिंग होती है उसकी. और असली उसका चैलेंज तब होता है जब वो बैटलफील्ड में फ्रंट लाइन पे खड़ा होता है. तो जब तक वो उस चीज के अंदर नहीं गुजरता और सामने उसके अंदर जो है अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने का जज्बा अपने फियर से ज्यादा नहीं बढ़ जाता, तब तक वो ट्रू एक्सपीरियंस नहीं कर पाता फियरलेसनेस को. तो अगर हमें ये सीड हमने बो दिया, लेकिन हमें डेली बेसिस पे जिन चीजों से हमें डर लगता है, जैसे कई बार हमें दूसरों का ओपिनियन को झुठलाने में भी डर लगता है. डर सिर्फ मृत्यु का नहीं होता है, छोटे छोटे डर होते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरी इमेज का क्या होगा. ये सब इनको हमें डेली फेस करना है और फॉर ट्रूथ फॉर धर्मा हमें इन सबको हराना है. और जब हम ये फेस करते हैं डेली फ्रंट लाइन पे तो धीरे धीरे हमें लगता है कि ये चीजें तो बेकार थी, मैं क्यों डर रहा था. और फिर इवेंचुअली असली बैटल और बड़े बड़े बैटल्स आते हैं. सो फॉर द आर्मी पर्सन, ये उसको जब तक वो फेस नहीं करेगा अपने अंदर वो फियरलेसनेस का जो थ्रिल है, fearlessness is thrilling. Once you feel that thrill, you know that fear is useless. You've risen beyond it. So unless, see, this battle has to be fought every day. Now each one of us has to think differently कि हमें किस चीज से डर लगता है और क्या हम उस डर को फेस करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम उसको जीतने के लिए क्या कर पा रहे हैं. तो that is like tilling the soil and मतलब means giving the water to the seed and everything. सिर्फ कह देने से नहीं बात बनेगी, उसको एक्शन में लाना होता है. जो जो आपके भय हैं भीतर के, उसको आप उससे बैटल करो और फिर जब विक्टोरियस हो जाओगे तो फियरलेसनेस का जो मजा आएगा वो फिर आप ही की सिचुएशन से बहुत महान होगा. तो आप अपने आप ही कहोगे यार वाओ, आई वाज मिसिंग दिस, आई डोंट नो व्हाई आई वाज fearful. Right. Thank you, ma'am. Yeah, this comes out very well with first paragliding jump, Yeah. Before you take a jump, you're so in fear. And once you take off from there and we are there in the sky, then you don't want to land back. That is fearlessness. When one para jump, when we go for para jumps in the forge, and when that I'm talking about the first jump. Yeah, that's once you cut that, then it's all thrill. It's all thrill. That's right. So that is one way to experience some physical fearlessness. लेकिन कई बार कई लोग जो क्लिफ से बंजी जंपिंग कर सकते हैं, वो अपने स्पाउस से सीधा बात करने में भी डर सकते हैं. So fear exists at many levels, at the heart level, at the brain level. So we must not think कि सिर्फ वो जो ग्लाइडिंग कर रहा है या जो रियल फिजिकल चैलेंज फेस कर रहा है वही फियरलेसनेस की तरफ जाएगा. बहुत छोटी चीजें और बहुत बड़ी चीजें हैं जो डेली लाइफ में हमारे सामने आती हैं. वो सारे फियर्स को हमें फेस करना होगा कभी ना कभी और उनको ट्रांसेंड करना होगा. सो यस, बट इट इज एब्सोल्युटली लाइक दैट. आप डरते ज्यादा हो. समटाइम्स आवर फियर फॉर समथिंग इज एक्चुअली ग्रेटर देन दैट थिंग इटसेल्फ. फियर ऑफ पेन इज ग्रेटर देन द पेन. जैसे कई बच्चे इंजेक्शन लगवाने से इतना डरते हैं, इतना बच्चे क्या बड़े इतना डरते हैं, सैंपल लेना हो इतना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. पहले इतना डरते जाएंगे और जब सैंपल 1 सेकंड में हो जाएगा तो ये तो कुछ था ही नहीं. सो एक्चुअली द फियर ऑफ द पेन वाज मैग्नानिमस बट द पेन इटसेल्फ वाज नॉट. सो वो हमारा माइंड जो है वो इतना मैग्नीफाई कर देता है किसी चीज को कि हम उसमें फंसने लगते हैं और हमारा सोल एक्चुअली जो फ्री है
वो उस वृत्ति में घुस के वो वैसा इमोशनल हो जाता है. So I think Pandey ji has raised a hand. Yes, Pandey ji. मैम अलका दिस साइड. Okay, अलका बताओ. जैसे मैं फील किया है कि वैसे कभी इतना नोटिस नहीं करते कि फेयर होता है कि नहीं होता. मे बी लकीली ऐसा कभी चांस नहीं हुआ कि मुझे किसी चीज से डर लगे. बट लेकिन जो कोविड का टाइम आया उसमें सबसे ज्यादा डरना चाहिए था. तो उसमें भी क्या हुआ कि अब जब से इस पाथ पे हूँ ना, तो कोविड में भी लोग ना बहुत न्यूज देख के डर रहे थे, मतलब बहुत सारी चीजें हो रही थी. बट मतलब एक बार बस ऐसे योगानंद परमहंस के बारे में सोचती थी ना कि यार लोगों के लिए हीलिंग प्रेयर करनी है और अच्छा सोचना, तो वो डर थोड़ा सा कम हो जाता था. तो फिर न्यूज देखने का भी मन नहीं करता था कि चल रही है, वेव्स आ रही है, जा रही है, जब हमारा नंबर आएगा हम भी चले जाएंगे. तो ये कोविड में मैंने एक्सपीरियंस किया कि मुझे लगा कि लाइक सही पाथ पे हो. Absolutely, that's excellent observation. So, स्वामी जी के सॉन्ग में क्या है? When others despair, you should have courage. Have courage when others despair. और कौन courage रख सकता है? जिसको थोड़ा बहुत भी spiritual path पे, जिसने वो पीस का एहसास अपने अंदर किया हुआ है मेडिटेशन से, उसको पता है कि इस दुनिया से ज्यादा भी कुछ और रियलिटी है, इसीलिए उसको डर नहीं लगता. Thanks for sharing that, Alka. Ekta, yes, you have raised your hand. जय गुरु मैम. तो जैसे कि आपने एक बार गीता की क्लास में भी हमें बताया था कि फियरलेस होने के, अगर इंसान फियर में है वो इस 2 रीजन की वजह से हो सकता है. एक कि उसका भगवान पे विश्वास कम है. तो अगर हमारा भगवान पे पूरा 100% ट्रस्ट है तो हम फियरफुल हो ही नहीं सकते. और दूसरी चीज ये कि अगर हम वी आर इंडल्ज इन दी माया, हम माया में उलझे हुए हैं, हम भूल गए हैं कि हम वी आर सेपरेट, वी आर आत्मन. अगेन वी वुड बी इन फियर बिकॉज हमें फियर होगा हमसे ये कुछ लूज ना हो जाए. तो जब हम इन दोनों चीजों को बार बार रिमाइंड करते रहेंगे कि नो वी आर आत्मा, वी आर सेपरेट फ्रॉम व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, एंड व्हेन वी हैव फुल ट्रस्ट ऑन गॉड कि जो अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, हमें लग रहा है कि बुरा हो रहा है बट हमारे साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो बैठा है हमारे साथ, हमारे पास, हमारे गुरु हमारे साथ है, हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता. सो हमें बुराई में भी जो हमें दिख रही है बुराई, हमें उसमें भी देखना चाहिए कि इसके अंदर कुछ छुपा हुआ अच्छाई है हमारे लिए. Then we will be fearless. Absolutely. Thank you for sharing. So what Ekta has shared is the 2 secrets of fearlessness. One is bhakti and one is gyan. So bhakti will be surrender to God. जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है. And gyan would be knowing that you are the Atman ever free. So by reminding yourself of these 2 truths again and again and again, there is no point and there is no place of fear. Fear अपने आप चला जाएगा. ओके. सो अब स्वामी जी का नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सूत्र में स्वामी जी पूछते हैं कि वो कह रहे, आप पहले तो आप कह रहे हो कि बी अनमूव्ड बाय गेन और लॉस, तो क्या इसका मतलब है कि शुड वी नॉट एंजॉय एनीथिंग, शुड वी नॉट रिसीव एनी गिफ्ट्स, और शुड वी यू नो he says that should we view even the sunset with a yawn, as it means we are bored, अब कुछ enjoy तो करना नहीं है तो हम ऐसे bored in life हो जाएं. So what is the answer? Patanjali did not mean to turn us into robots. For example, Guruji had a wonderful sense of humor. He would show delight in everything. But when you looked into his eyes, there was no ego there. He enjoyed everything with the joy of God. When people gave him things, he would not spurn them with an expression of contempt. He would show gratitude. He was sensitive to the feeling of others and did not want to disappoint them. He would weep when his father died, and he could rejoice in happy experiences. However, in his every enjoyment and sorrow, his eyes showed complete inner calmness and non-attachment. So by this example, basically we are to learn that yes, at the outset, we are not going to become a robot. कोई दुख में है तो दुख में हमारे आंसू भी निकलेंगे, but वो ह्यूमन लाइफ के आंसू हैं. हम अंदर से हमें मालूम होगा कि इसमें से कोई भी चीज हमें अफेक्ट नहीं कर सकती है, कि हम भी त्रिगुण रहितम है. पर क्योंकि हम फिलहाल ये रोल प्ले कर रहे हैं, सोचो कि एक रोल आपने थिएटर का ड्रामा चल रहा है
और जो पर्सन एक गरीब आदमी है सपोज अदरवाइज, और उसको रोल मिला है एक रिच मर्चेंट प्ले करने का, और वो यही वो रोल प्ले में आके स्टेज पे यही याद करता रहे कि मैं तो बड़ा गरीब हूँ, मैं तो बड़ा गरीब हूँ, तो वो रिच मर्चेंट का रोल प्ले कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन उसको पता है उसकी रियलिटी पीछे है कि वो एक्चुअल में पुअर है इन द आउटसाइड वर्ल्ड, बट ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ रिच मर्चेंट. सो सिमिलरली विद अस, we should always remember the reality of who we are. We are the Atman, and simultaneously superimposed on that, we should remember we are playing this role of this personality. हम इस जन्म में इस समय एक शरीर के थ्रू इस दुनिया में एक रोल प्ले कर रहे हैं. तो जो भी उस रोल की जो डिमांड है उस वैसा हमें अप्रोप्रिएटली बिहेव करना है, लेकिन अंदर से सदैव डिटैच्ड रहना है और सच को जानना है. Okay, so this brings us to the next sutra, which is Sutra 21. Tadarth ev drishyatma. Tadarth ev drashya atma. What does this mean? Tadarth means for the purpose of that. Ev is only. Drashya of what is seen, what is perceived. Atma is the self or the being. The objects of perception exist only for the purpose of the drashta. So ये इसमें सिंपली कहा गया है, the nature of all experience is for him. Him means the Paramatman, the Atman, the observer, the witness. Swami Kriyananda says, whatever is seen exists only for the sake of him who sees. So इसीलिए क्या कहते हैं कि जो भी इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही हैं चीजें, वो भगवान ने बनाई हैं, एक लीला है, वो अपने लिए बनाई हैं. तो सपोज मैं आपसे पूछूं कि आप जो गेम्स लाइफ में खेलते थे या बचपन में खेलते थे या अभी भी कुछ खेलते हो, तो वो क्यों खेलते हो? इसका आंसर आप मुझे कोई भी बता सकता है कि हम लाइफ में गेम्स क्यों खेलते हैं, या अगर हम पेंटिंग करते हैं तो हम क्यों करते हैं, या हम थिएटर में पार्ट लेते हैं तो क्यों करते हैं, हम डांस करते हैं तो क्यों करते हैं, गाना गाते तो क्यों गाते हैं? एनीबॉडी? हम ये सारी एक्टिविटीज इस दुनिया में क्यों करते हैं? We like it. Joyful. Okay, one by one. Joy, what are you saying? I say we want to experience that joy, at the end, like our soul wants to be in that moment to feel that joy, bliss. So we generally try to do those kind of things where we can feel that joy. That's why we play games and we try to associate with, but then that Maya comes around and takes us away from that joy, bliss. So there's what we Okay, want. so basically and you're doing yeah. it to feel happy, is it not? Absolutely. Okay, Ashish, what is it that you want to say? So in everything that we do, which we enjoy, we tend to forget who we are actually. Yes. We forget, matlab, all whatever is the surrounding we get submerged into that thing at that moment. That is right. So basically, लेकिन आप कर हैप्पीनेस के लिए रहे हो ना, कुछ भी एक्टिविटी जो आप जीवन में कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई. Let us take the time when you were relatively only doing your education and all. So आप जो भी एक्टिविटीज करते थे for happiness ही करते थे, for fun करते थे. अभी भी यदि कोई पेंटिंग करता है, so it's because it makes him fulfilled, it makes him feel happy. Absolutely. Is it not? So True. why did God create this world? God likes it. If it is for fun, then where is the fun? हमें क्यों फन नहीं मिल रहा उसमें? हम क्यों दुख पा रहे हैं उसमें? तो हमारी गलती है, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है. तभी गुरुजी बार बार कहते थे, एक तो डोंट टेक दिस वर्ल्ड वेरी सीरियसली, इट्स अ ड्रीम वर्ल्ड. सेकेंडली, इट्स फॉर एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट. तो हम एंटरटेन हो रहे हैं क्या? हम एजुकेट हो रहे हैं क्या? एजुकेशन ABCD वाला नहीं है, मैथ्स भी नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी नहीं है. क्या है असली? What is the education of this world? What are we here to learn? क्या सीखने आए हैं? We are his children. I mean, ultimately, when we are on this path, we are realizing that this body is not real. And when we go beyond this body, so through art or through music or through whatever means or the higher knowledge, we tend to go on to that plane wherein we know that this body is temporary. Okay, so हम ये ज्ञान प्राप्त करने आए हैं, ट्रू नॉलेज, विजडम प्राप्त करने आए हैं, और हम प्रेम करना सीखने आए हैं. Yeah, can I add this? See, we take birth, the soul comes back again only to be in love with this God.
That's the sole purpose. There's no other purpose. That is correct. Absolutely. So that's what one of, I think Saint Anthony or Saint Yeah. Thomas said. He said, Lord, thou hast created me for thyself. Only And one my purpose. heart will never find rest until it finds thee, means it merges back with thee. So that is the whole truth. और हम कहाँ फंसे हैं? अब सोचो, अब अपनी डेली लाइफ को इस ट्रूथ के साथ कंपेयर करो और आपको हंसी आएगी. It's quite comic the way we involve ourselves. If you see from that height, you see कि अरे हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम कहाँ फंसे हुए हैं. Truth is simple. That is why God is simple. Everything else is complex. अगर ये हम सिंपल ट्रूथ को हम याद करके रखेंगे कि हम क्यों आए हैं, तो जो हमारी बाकी प्रीऑक्यूपेशंस और पेटी थिंग्स हम जो सोचते हैं, हम कोई भी एक्शन आउटवर्डली करें, लेकिन हम इनवर्ड फ्रीडम से कर सकते हैं, ये जानते हुए कि वी आर एक्सप्रेशंस ऑफ द डिवाइन एंड डिवाइन इज जस्ट हैविंग फन थ्रू अस. सो हम ऑब्स्टेकल तो नहीं बन रहे उस फन में, अपने आप को सौरों में डुबो के. हमें भी हर चीज, वी हैव टू शाइन दैट लाइट ऑफ गॉड इनटू दिस वर्ल्ड. And especially if you are a yogi on the path, you are a disciple of a great master, it is your duty to be the shining light for others. इस माया में हमें भी जगाया गया है. Let us remember that the Guru has come in our life and woken us up. हम भी बहुत अंधकार में कहीं ना कहीं थे, अब रोशनी दिखाई देने लगी है. अब हमें वो रोशनी बनके इस दुनिया में साइलेंटली, चाहे अब ये जरूरी नहीं है सबको जा जाके पकड़ के बोलें कि आप मेडिटेशन करो, आप मेडिटेशन करो. Just be the light. And just remember that you are only for this purpose to enjoy this creation and to learn this lesson. And that's it. इससे ज्यादा कुछ भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है. सबको प्रेम करेंगे, अपने आप भगवान सब में नजर आने लगेंगे. किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें. ये ना सोचे दुनिया क्या दे रही है, तो भूल ही जाओ क्या दे रही है. क्यों दे दुनिया आपको कुछ भी, क्यों दे? आप क्या दे रहे हो? आप यहाँ क्या करने आए हो? आपने इस दुनिया में जॉय ऐड किया, लव ऐड किया, अपना विजडम ऐड किया, अपनी पावर दी, कंपैशन दिया कि नहीं दिया, कुछ फ्रूटफुल किया कि नहीं, कोई अच्छा बीज बोया कि नहीं, या सिर्फ यही रोते रहे कि क्या मिला क्या मिला क्या मिला, क्यों नहीं मिला, ये नहीं मिला वो नहीं मिला. क्या एटीट्यूड है हमारा? मजे करने आए हो, मजे तब होंगे आपके इस दुनिया में जब सबको मजे कराओगे. यानी कि जिस तरह से आपको जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं वो सब में बांटोगे. आई मी माइंड में फंस के नहीं रह जाओगे. My four, be four and just that's enough. उसमें नहीं रह जाओगे. So ये बहुत सारी चीजें हम इसको डिफरेंट एस्पेक्ट से देखते हैं. जो योगी है, जो ज्ञानी है, वो सिर्फ एक बार में ही समझ जाता है कि ये सब तो मिथ्या है. पर अब दोनों एंगल से देखना पड़ता है. हम आत्मा है, लेकिन इस चेंजिंग ये मिथ्या वाले वर्ल्ड में हम लव हैं. यदि हम इस मिथ्या वाले जगत में हम प्रेम पूर्वक रहेंगे, तो ये भी एंजॉयबल हो जाएगा और हम अपने असली अस्तित्व को भी कभी नहीं भूलेंगे कि हम भी उसी प्रेम से बने हैं. और प्रेम करने की सारी एबिलिटी जो है वो हमारी इन्नेट आत्मिक एबिलिटी है. सो ये बातें हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए. इसको भूल जाने से ही सारा पेन होता है लाइफ में. ओके, सो स्वामी जी goes on to say in this paragraph, in this sutra, God created everything because it is the very nature of bliss to manifest itself. All creation appeared for his own delight. God doesn't see the world as if from the top of a mountain, because he is in everything that can be seen. He is at the heart, center everywhere, circumference nowhere. He created everything as a manifestation of his own bliss. Okay, next sutra, 22. तो इसमें एक और इस सूत्र से बड़ी प्रैक्टिकल टीचिंग है. हमारा कुछ नहीं है, ये सब जो बनाया है भगवान ने बनाया, अपने मजे के लिए बनाया, आपके लिए नहीं बनाया. आपके लिए इन द सेंस इगोइक, एज एन आत्मन यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, आपके लिए ही बनाया है. लेकिन कहीं ना कहीं हम जो वो लिटिल आई में फंस जाते हैं, मेरा मेरा आई मी माई, उससे हटके आत्मिक आई से बोलेंगे तो ये दुनिया हमारे लिए ही बना सजाई गई है. इतने सुंदर भगवान ने क्यों बनाया है हमारे साथ, ये तो जॉय शेयर करना है उन्होंने अपना. तो आपके लिए है ये नजारे, लेकिन इसमें फंस मत जाओ ना. इस नजारों में आके ये मत कहो ये मेरा ये मुझे चाहिए, मेरा अटैचमेंट मेरा है, मेरा कुछ है ही नहीं मेरा. तो वो इस सच को हमेशा याद रखेंगे तो ये सारे चेंजिंग नजारे जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे. सूत्र 22. कृतार्थम प्रति नष्टम अनष्टम अन्व्यस्तधारणाश्वत. इसका क्या मतलब है? कृतार्थम is that person who has accomplished his purpose.
Prati is towards, Nashtam is destroyed, Anashtam is not destroyed, Anvya means for Anya is for others, and Sadharantvat because of being common. अब ये लैंग्वेज बड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही साधारण है. Though the delusion is demolished by the one who has attained this goal, it remains a universal reality for all other beings. यानी कि जो योगी ने अपनी साधना से और कर्म भक्ति और ज्ञान योगा से इस डिल्यूजन की वेल को हटा दिया है, उसको तो सबका जो वननेस है वो नजर आने लगता है, वो उसको एक्सपीरियंस कर लेता है, लेकिन वो वेल ऑफ माया बाकी सबके लिए वैसी रियल रहती है. जो योगी है उसके लिए माया अनरियल हो जाती है, वो उसके सच्चे रूप को पहचान जाता है, अपने आत्मा को सच्चा और माया को झूठ वो मिथ्या पहचान लेता है. लेकिन जो बाकी लोग अभी हैं जिन्होंने रियलाइजेशन ये नहीं अचीव कर ली है, उनके लिए माया बहुत रियल है. जैसे कि जब तक गुरु हमारे जीवन में नहीं आए थे, हमारे जीवन के सारे दुख परेशानियां हमें अपनी ही लगती थी और नहीं समझ आता था ये कहाँ से आ रही हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारा भी द लोटस इन हार्ट इज ब्लॉसमिंग. सो सिमिलरली हमारी कुछ वेल हटी है, योगी की पूरी वेल हट जाती है माया की, लेकिन बाकी लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं होते हैं, ये माया बहुत स्ट्रांग और रियल होती है. इसीलिए द हाईएस्ट ब्लेसिंग फॉर एनी इंडिविजुअल इज टू हैव अ गुरु, बिकॉज जैसे ही गुरु लाइफ में आते हैं वो वेल जो है वो हटने शुरू हो जाती है. स्वामी क्रियानंद says, what is perceived as non-existent by those who have attained the spiritual goal of enlightenment seems altogether real to those still struggling in delusion. For them, pleasure seems real, pain seems real, happiness seems real, suffering seems real. The life we live here on earth seems as a permanent reality. Yet, it has not even the reality of a bubble. We should remind ourselves in the face of all life's ups and downs that all this is a dream from which someday we will awake. And much sooner, if even in the dream, we try always to dream about the dawn of final awakening. So यदि हम स्वप्न की दुनिया में हैं, तो भी यदि हम ये स्वप्न देखें कि हम एनलाइटन हो जाएंगे, तो वो और जल्दी होगा. एनलाइटन तो हमें होगा, यही हमारी नियति है, यह हमारी डेस्टिनी है कि जो भी सोल सेपरेट हुआ है गॉड से उसने वापस मिलना ही है. तो और ये हमें अपने आप को रिमाइंड करना है कि ये टेम्पररी ड्रामा है, ये ड्रीम है. हम इससे जागरूक होंगे, गुरु की हेल्प से जागरूक होंगे, अपनी साधना से जागरूक होंगे, और ये जो द डिजायर टू बी फ्री इज दैट ड्रीम which will help you to hasten and get out of this dream world which is filled with desires and attachments. आप अगर हम थोड़ा सा भी एनालाइज करें हमारी कल तक की लाइफ को भी आप देखो, तो क्या उसमें एक ड्रीम लाइक फीलिंग नहीं है? ऐसा नहीं लगता कि वो सब स्वप्न था, पता नहीं क्या था? क्या किसी को लगता है ऐसे कभी फीलिंग आई है ये जीवन जीते हुए कि ये तो सब सपने जैसा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा ऐसा एलिमेंट है? ऐसा कभी भी आपको फील हुआ है? यू वांट टू शेयर दैट? इफ एनीबॉडी ऑफ यू हैज फेल्ट दैट? Yeah, there was a moment when I underwent a surgery, and when I was coming back to my senses after the surgery, I could feel the thing very clearly. I still remember that my whole thing was away from the body. Okay, And, that's an excellent observation. And then later on, I tried to find out, is it because of the anesthesis, drugs, and all that? But then later on, I found out that could be one of the possibility, but the other possibility also cannot be ruled out, that you can have your soul watching all over what's happening. Absolutely. So why did it happen to you when you were getting out of the anesthesia? Is because there is a phase between the conscious and the subconscious state where you can actually feel this. So the Ramana Maharshi said this again and again, that when you wake up in the morning and you are just between your subconscious sleep and the conscious awakening, there is, if you lay quiet in your bed, if you are silent, you can actually feel that you are separate from the body. So you can, so this is a state which is just between the subconscious and the conscious. Therefore, आपको जब एनेस्थीसिया से आप बाहर निकल रहे थे, आप सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में आ रहे थे, उस फेज में आपको ये एहसास हुआ, this is a realization, it is truth.
you can actually feel it. और इसी तरह अगर हम अपने आप को ट्रेन करें तो जब हम सोने जा रहे होते हैं, कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस में ट्रांजिट कर रहे होते हैं, तभी भी ऐसा एक जोन आता है जब हमें we feel as if we are pure awareness and not the body lying on the bed. And a similar situation happens in the morning when you are shifting from your subconscious dream or sleep state to the conscious awakening. So be watchful. If you're alert and aware, then you will be able to find out those moments when you can see this as the truth. So yes, this world has absolutely a dreamlike quality if you analyze it. और जब आप उठ जाते हैं तभी आप रियलाइज करते हैं, आप ड्रीम में कुछ भी, सपने में कुछ भी देख सकते हैं, डरावना भी देख सकते हैं, बहुत सुंदर भी देख सकते हैं, और आप ये रियलाइज जब आप उठते हैं तभी आप ये समझ पाते हैं कि ये ड्रीम था। इसी तरह जब हमारा ये जीवन से जब हमारी फाइनल अवेकनिंग आएगी, हम रियलाइज करेंगे, और ये फाइनल अवेकनिंग बहुत दूर नहीं है। स्वामी जी क्या कहते थे कि अगर एक आप दरवाजे में लकड़ी में नेल घुसा हुआ है, आप उसको पुल कर रहे हो, पुल कर रहे हो, पुल कर रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो, आपको ये नहीं पता कि उसका लास्ट कब है, वो कब एकदम बाहर निकल आएगा। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपको पता नहीं कितने साल और कितने जन्म लगने वाले हैं एनलाइटनमेंट में पहुंचने के लिए। वो जो है ऑफ कोर्स एनलाइटनमेंट एज इन पहले सभी कल्प समाधि होगी और फिर उसके बाद वो और आगे डीपर जाता है। तो वो एहसास जो है, वो फीलिंग या वो विजन या वो एक्सपीरियंस, वो आपको कभी भी मिल सकता है। It is only by the grace of the Guru it can come to you any time. So are you ready for it? But so just open your heart. अगर आपने मन में ये सोच लिया कि पता नहीं वो तो कब मिलेगा, तो वो पता नहीं कब मिलेगा। लेकिन if you're saying okay God, I'll do my practices and I am ready, whenever you feel I'm ready for the experience, please grant me a tangible experience. So once you do that, you will start to feel, and जब आपको वो experience होगा तो आपको लगेगा यार it was always with me. I mean, when you actually experience the real self, the Atmic self, you know that the rest of your life that was a dream, and this was always true and it was always available to you. But you never put your attention there. So the Atma is ever available to us. हमारा ध्यान इस संसार में है, इसीलिए हम फंसे हैं। यदि हम ध्यान पूर्वक ज्ञान से देखेंगे तो हम आत्मा वाला ध्यान आत्मा में आ जाएगा, और हम ये जान जाएंगे कि हम तो अनअटैच्ड सेल्फ हैं, और ये सारी जो संसारिक चीजें हैं ये तो हमें बस टेम्परेरीली फंसा रही थी, पर हम फंस सकते नहीं हैं। सो ये बिल्कुल ये मत सोचिए कि पता नहीं कब कितने जन्मों बाद ऐसा होने वाला है, ये कभी भी हो सकता है। और बी ओपन फॉर दैट, बी रेडी फॉर दैट, एंड इट्स नॉट लाइक अ विजन की ओहो पता नहीं लाइटनिंग नजर आएगी या क्या स्प्लैश नजर आएगा या खूब साउंड्स होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू विल जस्ट बट यू विल नो इट। सो एक हद तक हमें जो है स्क्रिप्चरल नॉलेज हेल्प करती है, बट जो लास्ट की ऑफ समाधि एक्सपीरियंस है वो अपने आप होती है। दैट्स अ सडन टर्निंग ऑफ द इंट्यूशन, एंड दैट कैन हैपन एनी टाइम। बट चेक विद योरसेल्फ, इज योर प्रैक्टिस रेगुलर एंड सिंसियर? आर यू ट्रस्टिंग गॉड? आर यू फॉलोइंग द गुरु? अगर आप अपना वर्क कर रहे हो तो गुरु विल नेवर फेल यू, ही विल डेफिनेटली गिव यू दैट एक्सपीरियंस when he feels that you are ready. As in the autobiography of a yogi, clearly master says it is not by the intellectual readiness of the disciple or devotee that samadhi comes. It is an intuitive unfoldment that comes by the grace of the master. So the guru knows when and how to give you experiences. आपका काम है बीज बोना, उस पे पानी डालना, वो पेड़ अपने आप, जब पेड़ अपने आप बढ़ जाएगा तो उसमें फल भी आएगा और फूल भी आएगा, उसको अपने आप होने देंगे हम। ठीक है, सो इस वर्स को हम यहीं पर आई थिंक वी विल लीव इट हियर, एंड इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन वी कैन एड्रेस दैट, बट जस्ट okay, yes. Here I just wanted to add one thing. Yes. That suddenly from an actor you become an audience to the things that are happening around you. That's one major shift that happens, and it's so subtle, and it's because you stop reacting to things. Absolutely, very true. So you suddenly, so what is audience? Audience is the witness. So witness will watch the pleasurable scene, will watch the painful scene, and with knowledge know that every pleasure will be followed by every pain. तो ये मूवी अब यहाँ जा रही है, अभी यहाँ भी जाएगी, ये उसको पता है, और वो एक अनअटैच्ड विटनेस की तरह, ऑडियंस की तरह देखता है। The beauty of this whole drama is that the director
is God, the screenplay writer is God, the lyricist is God, all the songs are God, all the music, all the composition, the screen itself is God, the light that portrays is God, the actors are God, the audience is also God. So everything is one. It appears for the sake of fun, for the sake of drama and play. It appears as so many different things. So when we renounce that plurality and we come to that unitive identity that, there is only one singular reality, with bhakti, with jnana, with karma, with meditation, ये सब चीजें हेल्प करती हैं. और खुश रहना सीखिए. दुख रहने का पॉइंट क्या है? अब बताइए क्यों दुखी हैं आप? बताइए क्यों हम दुखी रहते हैं? बताइए क्योंकि सिंपली हमें वो नहीं मिला जो हमें मिलना चाहिए था. हम हैं कौन? इन आवर ईगोज नथिंग. हमें कोई क्यों कुछ देगा? वो उस पॉइंट से आप निकलिए और सच को अपने आप को क्वेश्चन कीजिए कि मेरा नेचर इटसेल्फ इज हैप्पीनेस. इफ आई एम द आत्मन, then I am happiness itself. I am love itself. I am not only loving, I am love itself. I am not only wise, I am wisdom itself. I am not only healthy, I am health itself. फिर अगर मैं सौरों में हूं तो ये मेरी प्रॉब्लम हो गई क्योंकि मैं अपने सोल को इस माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स से जोड़ दिया है. तो उसको डिटैच कौन करेगा? हम करेंगे with the grace of the Guru. ये बात निरंतर हमें अपने आप को याद कराते रहनी है और याद कराएंगे तो क्यों नहीं फल और फूल होगा? जरूर होगा. This is how cause and effect work, and this cause of your effort will lead to the fruit of self-realization, and then you will be beyond all cause and effect. I think let's just pause for the class today here, and let us share these words of wisdom from the great sages, from the Guru to the whole world. Let's share with all. May these vibrations uplift all souls to their own higher self. Let us pray together. Divine Mother, Thou art omnipresent. Thou art in all Thy children. Manifest Thy healing presence in all bodies, all minds, and all souls. Om. 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 Divine Mother, may Thy love shine forever on the sanctuary of our devotion, and may we be able to awaken Thy love in all hearts. Om Shanti, Shanti, Shanti.